ओके सो वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस क्योंकि इसके आगे फिर वापस हम लोग थियरी पे शिफ्ट हो जाएंगे कल से. From next session we will be shifting back to theory. So today our task is to solve some problems related to what we have learned so far. At distance, at what distance below the surface of Earth the acceleration due to gravity decreases by 10% of its value at the surface of Earth, given radius of Earth is 6400 किलोमीटर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हमको पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस बिलो सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10%. 10% से डिक्रीज होना मतलब 90% रिटेन करना. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ इज 90% ऑफ द सरफेस वैल्यू, है ना. क्योंकि 10% से डिक्रीज होना मतलब ये होता है दैट 90% is retained. Okay, so you have GD by G is equal to 90 by 100. Okay, so given में आपको radius of earth भी दिया है 6400 and you are supposed to find out the value of this depth. You are supposed to find out what is the value of D at what distance below. Okay, right, just a minute, just a minute. All right, so formula is very simple as you already know. GD by G is equal to 1 minus D by R. हमको डेप्थ फाइंड करना है. इजी क्वेश्चन है, शायद पहले किया भी होगा. आई डोंट रिमेम्बर. नथिंग, नो हार्म इन रिपीटिंग दिस क्वेश्चन. सो GD by G is 1 minus D by R and GD by G is 90 by 100, that is 9 by 10. 1 minus D by R. So D by R is 1 minus 9 by 10, that is 1 by 10. So D is equal to R by 10, that is 6400 kilometer by 10, which is 640 kilometer. So 640 kilometer पे you will have acceleration due to gravity 90% of its surface value. Okay, so this is how you can solve this particular question. Okay, so it's simple, it's that simple. Next, find the gravitational force between the sun and the earth. So actually this question is kind of a joke. तो मैं यहाँ पे इसको सिर्फ बता देता हूँ, आपको पता ही है क्या करना है. So we are not going to waste a lot of our time in solving this question. तो बहुत सिंपल है, आपको सन एंड अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है. आपको मास ऑफ सन दिया है, मास ऑफ अर्थ दिया है और आपको एवरेज डिस्टेंस दिया है. तो यू नो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज G m1 m2 मतलब मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर. ओके, राइट. तो यू हैव दिस f इज इक्वल टू, वैल्यूज डालना है और सॉल्व करना है. G की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11. ms और me पता है, डिस्टेंस स्क्वायर पता है, एंड देन यू कैन जस्ट put values and solve. So I'm not going to do that for you. You are supposed to do it yourself. खुद को करना पड़ेगा आपको. Next question. Calculate the acceleration due to gravity at a height of 300 kilometers from the surface of Earth. So you're supposed to find out
acceleration due to gravity at a height of 300 km from the surface of Earth, given mass is 5.98 into 10 power 24 kilogram, मतलब around 6 into 10 power 24 kilogram. Radius of Earth is 6,400 kilometer, right? And you are supposed to find out acceleration due to gravity gh. The formula for that is gh by g is equal to r स्क्वायर अपॉन r प्लस h स्क्वायर. अगर आपको याद होगा तो, if you remember, okay, if you remember, you have this formula. But यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या बताया है? आपको हाइट दिया है, yes, you have been given height is 300 किलोमीटर. आपको r दिया है, g की सरफेस वैल्यू हमको पता नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ यही एक इशू है that you don't know what is the surface value. g की वैल्यू दी नहीं है. Okay, so if you're not given value of g, then you will have to do something मतलब यहाँ पे कोई assumption नहीं चलेगा, like you cannot take 9.8 also. तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं gh is equal to g r square, सिर्फ g को वहां शिफ्ट किया, r square upon r plus h bracket square. Okay, then but what we know is g is equal to gm by r square. Therefore gm is equal to gr square. Correct? So from equation number 1 and 2, so from 1 and 2, what you can do is you can put gr square as gm. Therefore the value of gh is equal to gm upon r plus h square. So therefore you can substitute value of gh is equal to g. g की वैल्यू भी आपको दी है, नहीं दी है, nothing. So you are also not given the value of g, but फिर तो एक ही बात हो गई, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपके ऊपर है. You can just take the value of g as 6.6 into 10 power minus 11, और m की वैल्यू दी हुई है 5.98 into 10 पावर जो भी आएगा 10 power 24 है. Well, they should have given the value of g. But anyways, 10 power 24 आएगा डिवाइडेड बाय r अपॉन r प्लस h स्क्वायर आएगा ये. तो r is 6400 किलोमीटर एंड h is 300 किलोमीटर. 6700 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10 पावर 3 उसका स्क्वायर करो, राइट. तो gh इज इक्वल टू 6.67 इंटू 5.98 into 10 power 13 अपॉन 67 into 10 power 5 का स्क्वायर, 67 into 67 into 10 power 5 का स्क्वायर, 10 power 10. तो you have to solve all these things. So it is roughly 1 and 10. तो ये कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे. This is method number 1, of course. Alternatively you can solve directly, क्योंकि g की वैल्यू अगर हम लोग डाल देंगे तो भी आंसर आ जाएगा. तो you can take g r upon r plus h square. Method 2 ज़्यादा convenient इसलिए भी है because here you don't have to convert from kilometer to meter. So some books will tell you to solve via method 1. I don't want you to solve it via method 1. तो यहाँ पे 9.8 ले लेना. अगर g की वैल्यू 10 नहीं बोली होगी तो 9.8 ले लेना. r की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, नीचे 6400 प्लस 300 मतलब 6700 किलोमीटर आएगा का स्क्वायर आएगा. तो 64/67 ये आप इजीली कर सकते हो. इट शुड बी slightly less than 1. So let me just check quickly what is 64/67. 0.955 इसका स्क्वायर होगा
0.95522 का स्क्वायर होगा, दैट टर्न्स आउट टू बी, तो ये आ गया 0.9552। अब इसका स्क्वायर करोगे और 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8.94 समथिंग, 8.941 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इनके आंसर में 8.889 है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसे बताया उन्होंने मेथड 1 से सॉल्व किया है। मेथड 1 में आप देख ही रहे हो कि जी एम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी एंड देन यू कैन जस्ट सॉल्व इट, राइट। तो मैं वापस बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास H 300 किलोमीटर है, और एक चीज है दैट यू नीड टू चेक फॉर योर सेल्फ, और वो ये है दैट बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज, हमारे पास दो फॉर्मूला थे, तो जी एच इज इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, या फिर हमारे पास जी एच बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एच बाई आर, ये फॉर्मूला भी था हमारे पास। तो इससे भी करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट आंसर डू वी गेट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो जी एच बाई जी अगर मैं 1 माइनस 2 एच बाई आर लेता हूं, माई जॉब इज टू फाइंड आउट जी एच, तो जी एच इज जी दैट इज 9.8, 1 minus 2 into 3 that is 600 by r is 6400, ओके। ये आपका आ गया 1 minus 3 by 32, ये आ गया 9.8, 32 minus 3 that is 28 by 32, तो 28 by 32 into 9.8 करोगी तो let's see what it turns out to be, 28 by 32 into 9.8, तो 8.575 आ रहा है, बहुत छोटा आंसर आ रहा है, राइट। like 29 by 32, not 28 by 32, but anyways 29 by 32 into 9.8, 8.88125, तो which one is near, 8.88125 कहां से आया, 1 minus 2h by r से आया। तो you need to understand कि कब आप r अपॉन r प्लस एच स्क्वायर फॉर्मूला यूज करोगे, कब आप 1 माइनस 2h by r फॉर्मूला यूज करोगे। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन वाज इंटेंशनली इंक्लूडेड हियर, क्योंकि h की वैल्यू 300 है। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूं विथ द वैल्यू ऑफ r, तो आप r बाय h ले लो, समझ में आ जाएगा। r is 6400 by 300, I can just make it roughly 6300, roughly बोल रहा हूं मैं, 1 and 20 1, तो h is r by 21, है ना। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बार बार बताया था कि you have to be little careful while solving such questions। तो कुछ कुछ बुक्स में they are giving you the formula as r upon r plus h square, फिर वहां पे आपको बोलेंगे दैट जी एच इज जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, फिर जी और एम की वैल्यू डालो और उसको सॉल्व करो। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। तो उसको सॉल्व करोगे तो फाइनली बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, एंड लेट मी आल्सो टेल यू व्हाट इज द आंसर फ्रॉम दैट कैलकुलेशंस। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर, यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज कैलकुलेटर, आपको ये लॉग बुक से ही करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इफ यू डू इट एग्जैक्ट कैलकुलेशन यूजिंग लॉग एंटी लॉग, तो इसका आंसर भी 8.8859 आ रहा है कुछ तो, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो आई विल लीव यू विथ अ क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आपके पास आया 8.8885, मतलब रफली 8.889 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है, यू हैव दिस पर्टिकुलर वैल्यू, करेक्ट। इसका मतलब कैपिटल जी एम की वैल्यू से कैलकुलेट करोगे तो यू आर गेटिंग
करेक्ट आंसर, राइट। तो what question I am leaving for you is this, कब आप GH is equal to GR upon R plus H square यूज करोगे, और कब आप GH इक्वल टू G1 माइनस 2H बाई R यूज करोगे। मैंने पहले भी एक बार बोला था कि यू हैव टू चेक एंड टेल मी, सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने मुझे ये बताया है। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है एट अ हाइट ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ का मास दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस दिया हुआ है। ओके, जी की वैल्यू नहीं दी हुई है पर पता होना चाहिए, कैपिटल जी की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। कैपिटल जी इज 6.67 into 10 power minus 11, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। तो हमको फॉर्मूला हमने लिया जी एच बाई जी इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर। तो जी एच इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, राइट। तो जी आर स्क्वायर हमको मिल गया जी एम, तो ये वैल्यू हमने जी एम हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 1। okay, and then solving you get correct answer. So which leaves a question mark for you, and this is the question mark here. I want you to read textbook, I want you to read any other book which has this particular theory and check कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करोगे। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ JEE नीट एंड CAT also, तो पता होना चाहिए फॉर यू। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the value of acceleration due to gravity on the surface of Mars if given, ये तो जोक है। So it is given that, ये दो तरीके से हो सकता है solve, you can solve it by 2 methods but I'll tell you one only here। Given mass of Mars is 6.4 into 10 power 23 kilogram, radius of Mars is basically 3.4 into 10 power 3 kilometer, 3.4 into 10 पावर 3 किलोमीटर, मतलब 10 पावर 6 कर लेंगे मीटर्स में। ओके, गुड। देन you are supposed to find out what is the value of G, what is the value of acceleration due to gravity on the surface of Mars, right। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, आपको ऑलरेडी पता है, Gm is G mass of Mars upon radius of Mars the square. So you can find out directly by substituting the values of mass and radius of Mars. So this is one way, and you know G की value is 6.6 into 10 power minus 11 into mass of Mars is 6.4 into 10 power 23 kilogram divided by radius का square, and radius का square हम लोग देखेंगे। तो रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज 3.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर का स्क्वायर आएगा। सो अगेन दिस विल इंक्रीज योर कैलकुलेशंस, क्योंकि ये आपको एंटीलॉग लॉग से ही आने वाला है ये, तो लॉग एंटीलॉग करके करो, या फिर अदर मेथड आई एम गोना टेल यू इन अ मिनट। तो बाय द वे, this is equal to, after doing everything calculations करने के बाद, this is equal to 3.697 आ रहा है मेरा, 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, alternate method number 2, you already know, alternate method भी है, that is also little bit lengthy। आप बोल सकते हो acceleration due to gravity on moon to that of earth
इज इक्वल टू, है ना, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, ऐसे केसेस में आपको मार्स का मास और अर्थ का मास ये एक दूसरे के फैक्टर्स के टर्म में लिखना होता है, राइट। अगर इफ यू डोंट नो दैट देन यू शुड नॉट बी डूइंग इट। अगर आपको नहीं पता तो नहीं करना हो। नॉर्मली मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 और मार्स का जो मास है दैट इज 6 × 10⁻23। तो मार्स का मास इज 1/10 ऑफ अर्थ। नॉर्मली बोल रहा हूं मैं, नॉर्मली रफ कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो सिमिलरली जब आप रेडियस की बात करोगे तो रेडियस ऑफ मार्स को आपको अर्थ के रेडियस के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो दिस इज अल्टरनेट मेथड विच इज नॉट सजेस्टेड हियर। वो आप JEE नीट CET में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको बोला ही ऐसा होता है, रेडियस ऑफ मार्स इज 1/2 ऑफ अर्थ, मास ऑफ मार्स इज 1/10 ऑफ अर्थ, ऐसा बोला होता है वहां पे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ पे क्या यूज करना है। न्यूमेरिकल्स ऑफ ग्रेविटेशन आर comparatively very simple. Next question. So calculate the value of universal gravitational constant from the given data. तो you have been given some data और उस डेटा से आपको g की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब मोर और लेस एज यू कैन सी सिर्फ कैलकुलेशंस के ही काम है इसमें। सो यू हैव बीन गिवन रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ दिया है आपको 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ आपको दिया है 6400 किलोमीटर, 6405 मीटर। एंड जी की वैल्यू दी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको जी की वैल्यू। सो फॉर्मूला इज सिंपल, इट इज एक्चुअली अ जोक। g इज इक्वल टू gm/r²। अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला पता होगा तो यहां से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो व्हाट यू कैन हैव इज g इज इक्वल टू gr²/m। ओके, करेक्ट। तो g इज इक्वल टू स्मॉल g की वैल्यू 9.8 है, r की वैल्यू आपको दी है 64 × 10⁻5 का स्क्वायर करेंगे, अपॉन मास की वैल्यू आपको दी है 6 × 10⁻24। तो ये आपको कैलकुलेशंस करने हैं यूजिंग लॉग एंटी लॉग। तो दैट इज अ टास्क दैट यू आर सपोज टू डू। लॉग एंटी लॉग मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि वो आपको करना है, बिकॉज you are supposed to do it in exams also. So I'll tell you it turns out to be 6.690 into 10⁻11 after doing all the calculations. Okay, तो यहाँ पे आंसर गलत है क्योंकि 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय 64 40,140.8 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 6690 और बाकी तो सिर्फ पावर का एडजस्टमेंट ही है। तो द वैल्यू ऑफ जी इज कमिंग आउट टू बी दिस पर्टिकुलर वैल्यू इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, so calculations
you are supposed to do with the help of log anti-log table, and you should get roughly this answer. कुछ भी नहीं था यहाँ पे, simple question. A body weighs 5.6 kgWt on the surface of Earth. So a body weighs 5.6 kgWt. kgWt is unit of force. वो आपको मैं बताऊंगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. सिर्फ यहाँ पे आप g की वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करते हो, दैट्स इट. उसको किलोग्राम वेट बोलते हैं. नॉर्मली वेट क्या होता है, mg. सपोज आपका मास 70 है ना, तो मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज योर वेट, आप बोलते हो 70 kg. इन फैक्ट व्हाट यू आर टेलिंग मी इज 70 kgWt because you have not multiplied by value of g. अगर वैल्यू ऑफ g से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 700 न्यूटन का आएगा, राइट. तो दैट इज नॉर्मल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, राइट. 1 किलोग्राम ये दे दो, 1 किलोग्राम वो दे दो. यू आर टेलिंग द शॉप ओनर गिव मी 1 किलोग्राम WT weight of that particular thing. तो weight of the body on the surface of earth is surface value है, ये surface value है. How much will be its weight on a planet whose mass is 1/7 of mass of earth. So mass of planet is 1/7 of mass of earth and radius twice that of earth's radius. Okay, and you are supposed to find out what will be the weight on planet. Simple सा क्वेश्चन है. फॉर्मूला इट इज सिंपल, बहुत सिंपल सा चीज है ये. तो बेसिकली वेट इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो वेट इज mg, दैट इज m. स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ओके. g इज acceleration due to gravity which is gm by r square, करेक्ट. ये पता होना चाहिए. तो how do you solve this? It is simple. Weight on planet upon weight on earth is equal to मास m लिखा है हमने, तो मैं लिख देता हूं mg मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर अपॉन mg मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर्ड. तो वेट मैंने ये ऑलरेडी बताया था आपको 2 एग्जाम्पल पहले. तो इट इज काइंड ऑफ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. mp upon me re upon rp का स्क्वायर. mp upon me is 1/7. re upon rp is 1/2. तो ये आएगा weight on the planet is 4 into 7 28 of weight on earth. Okay, right, good. So this is equal to 5.6 divided by 28. okay, तो ये आपका आना चाहिए. इन्होंने 9.8 दिया है. वापस एक बार चेक करते हैं हम लोग. क्वेश्चन सिंपल है. A body weighs 5.6 kgWt on the surface of earth, करेक्ट है. How much will be its weight on a planet whose mass is 1/7 of earth. 1/7 of earth, ये भी करेक्ट है. Radius twice that of earth, ये भी करेक्ट है.
वेट इज इक्वल टू mg, ये भी करेक्ट है, g इज प्रोपोर्शनल टू gm/r², ये भी करेक्ट है। तो वेट ऑन द प्लैनेट is this, that is also correct, and this goes up, उसका स्क्वायर भी करेक्ट। mp upon me 1/7, that is correct। re upon rp is 1/2, that is also correct, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4, 4 into 7 28, ये भी करेक्ट, मतलब आंसर होना जो लिखा है वो इनकरेक्ट। तो that is what I was telling you, that normally they write some kind of wrong answers, so it should be 0.2 basically, okay, it should be 0.2, क्योंकि तो इजी दिख ही रहा है 0.2 है, तो this should be 0.2 kg WT all. There's a printing mistake here, so it's not 9.8, it is 0.2, sure 100% sure। okay, so this question was last question from your textbook. Now we are going to solve few extra questions which are not there in your textbook। तो कुछ MCQ कर लेंगे, मुझे सिर्फ ये बताना है कि डिफरेंस क्या है। जैसे ये क्वेश्चन हमने फुल फ्लेज मेथड से सॉल्व किया है, MCQ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन 2 or 3 MCQs। if we have time I will be taking more। if a graph is plotted between t square and r cube for a planet, then its slope will be। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टी स्क्वायर और आर क्यूब ये हमने के प्लस थर्ड लॉ में देखा था। इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि हमने के प्लस थर्ड लॉ में बोला था स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस, राइट, गुड। इन एनी केस व्हाट यू कैन डू इज, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, मान सकते हो अर्थ मून सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो सन अर्थ सिस्टम, राइट। व्हाट वी नो इज, जैसे मून है अराउंड अर्थ इज इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स necessary for moon to perform circular motion around earth is given by gravitational force। centripetal force is mr omega square, where r is radius of the orbit। gravitational force is g, mass of earth, mass of moon upon r square, है ना। ओके, यहाँ पे मून अर्थ नहीं, यहाँ पे सन और प्लैनेट सिस्टम बोला है। तो मुझे ये बताना था आपको कि ये जो स्मॉल m है ये मास ऑफ सेकेंडरी है जो कैंसल आउट हो जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। मैं वापस बता देता हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास सन है, एक प्लैनेट है। प्लैनेट अगर सर्कुलर ऑर्बिट में है तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रिपिटल फोर्स होता है मास ऑफ प्लैनेट, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में प्लैनेट है, सन नहीं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट इनटू ओमेगा स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। centripetal force is given by gravitational force, and gravitational force is g, mass of sun, mass of planet upon distance का square। cancel cancel, okay। omega square equal to g ms upon r cube। omega is 2 pi by t। omega angular frequency is 2 pi by time period, ये पता होना चाहिए। g ms by r cube, मतलब
मैं अगर स्क्वायर करता हूं तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू जी एम एस अपॉन आर क्यूब। मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम एस आर क्यूब। अगर मैं y एक्सिस पे टी स्क्वायर प्लॉट कर रहा हूं और x एक्सिस पे आर क्यूब प्लॉट कर रहा हूं, तो ये जो कांस्टेंट बचेगा, बिकॉज यू विल हैव फॉर्म इक्वल टू y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म आएगा, तो y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म आएगा, तो स्लोप हियर इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस। ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसा ग्राफ आएगा उसका, राइट। I can ask you such MCQs in your state board exam also. मैं पूछ सकता हूं, इसलिए ले रहा हूं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि क्लिक नहीं होता, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखो ऐसा है, एक प्लैनेट अगर सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो मैं अजम्पशन तो ले सकता हूं कि सर्कुलर ऑर्बिट होगा। अगर ऑर्बिट सर्कुलर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। अभी है ही जस्ट एक प्लैनेट और सन, तो फिर जो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करेगा? दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। सॉल्व करते गए हमको मिल गया टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस इंटू आर क्यूब। उन्होंने क्या बोला है? इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टी स्क्वायर एंड आर क्यूब, मतलब मैं टी स्क्वायर को वाई एक्सिस पे रख रहा हूँ, आर क्यूब को एक्स एक्सिस पे रख रहा हूँ, तो स्लोप क्या आएगा? तो हमने क्या किया, हमको एक इक्वेशन मिल गया टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस इंटू आर क्यूब। तो y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म आ गया, तो स्लोप आ गया आपका 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम एस। मतलब इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद अ स्लोप ऑफ 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। गुड, ये तो और भी सिंपल है। द एक्सेलरेशन due to gravity and density of the earth are related by which of the following relations? हमने पहले भी किया है ये। हमको पता है acceleration due to gravity on the surface of earth is given by g mass of earth upon radius of earth का square. What else we know is mass of earth can be given by volume of earth into density upon radius of earth square. Then we can write g is equal to volume of earth assumed to be a sphere. earth को हम sphere मान लेते हैं 4/3 pi r cube, क्योंकि volume of earth equal to volume of sphere, that is 4/3 pi r cube into rho upon r e square. ये कैंसल हो गया, तो आपको डेंसिटी मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, चीजों को शिफ्ट करना है यहाँ से वहां। तो आई इंक्रीज वन स्टेप, g इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर ई रो। तो रो इज इक्वल टू 3g अपॉन 4 पाई कैपिटल जी आर ई। 3g अपॉन 4 पाई कैपिटल जी आर ई। ऑप्शन नंबर बी, राइट। So this is how you solve such questions, right? Okay. All right. So we will be solving these two questions. They have appeared in either JEE or NEET exam in 2012 and 2017. आपको समझेगा कितना easy question आता है। The height at which the weight of the body becomes 1/16 of its weight on the surface. तो weight of body becomes 1/16 compared to weight on the earth, ऐसा बोला है। तो height पूछा है, तो it is simple question because WH by WS is 1/16, पर weight आपको पता है ना, mgh, gh is acceleration due to gravity at height h, mgs on the surface, mm cancel 1/16, gh upon g आपको ऑलरेडी पता है, gh upon g is
r upon r plus h ब्रैकेट स्क्वायर 1/16। फिर आपको पता है जब स्क्वायर रूट लोगे तो r अपॉन r प्लस h 1/4, तो 4r इक्वल टू r प्लस h, तो h इक्वल टू 3r। तो 3 टाइम्स ऑफ रेडियस पे you can have the value of weight 1/16 as compared to its surface value, right? तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल। Then the acceleration due to gravity at a height of 1 kilometer, 1 kilometer height मतलब you are in the domain of h by r very less than 1, height बहुत ही कम है compared to the surface, ये पता होना चाहिए। तो इमीडिएटली बताना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 - 2h by r वाला। The acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the earth is same as that of depth, मतलब gh is equal to gd, ऐसा बोला है। Acceleration due to gravity at height h is equal to depth d, और ये आता है g1 - 2h by r। मैंने यहाँ पे 1 - 2h by r क्यों यूज किया, हाइट इज just 1 kilometer which is very less than radius of earth, g1 minus d by r, g cancel, तो 1 minus 2h by r equal to 1 minus d by r, 1 भी cancel, तो 2h by r equal to d by r, r भी cancel, तो d is equal to 2 times of h, और h का है 1 किलोमीटर, तो डेप्थ आ गया 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर पे डेप्थ में 2 किलोमीटर पे जो वैल्यू g की होगी वही हाइट पे 1 किलोमीटर पे होगी। दिस इज व्हाट इट मींस, राइट? सो इफेक्टिवली व्हाट वी हैव डन टुडे सो फार, मैं रिवाइज करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10% से डिक्रीज हुई एट सम डेप्थ, ओके, और आपको डेप्थ का वैल्यू पूछा है, हाउ मच इज द डेप्थ एट विच 10% इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g, मतलब 90% रिटेन करेगा, 10% कम होगा। तो gd by g इज 1 minus d by r, तो सॉल्व करके d की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जोक था, वो मैंने पूरा नहीं किया क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करने के लिए लगाया है वहां पे, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज g m1 m2 by r square, बस वही करना है, राइट? देन व्हाट वी हैव इज we are supposed to calculate acceleration due to gravity at a height of 300 kilometer from the surface of earth। तो gh by g equal to r upon r plus h ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। इसमें g r स्क्वायर की जगह पे आप g इंटू m ये सब्स्टिट्यूट करोगे, कैपिटल G की वैल्यू पता है, कैपिटल M की वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेशंस करोगे एंड विल जस्ट सॉल्व इट। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक टास्क छोड़ा है, जी एच इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर कब यूज करते हैं, और जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर कब यूज करते हैं। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू चेक फॉर योर सेल्फ, क्योंकि बहुत जगह पे काम में आएगा एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलत फॉर्मूला यूज करने की वजह से मार्क्स माइनस में आ जाते हैं, इसलिए खुद करोगे तो याद रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity on the surface of Mars। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, उसका अगला क्वेश्चन भी सिर्फ कैलकुलेशन है, राइट? ये जो क्वेश्चन है इट इज अगेन आपको एक प्लैनेट पे वेट पूछा है, जिस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 5.6 kgWd था। आपको बोला है मास ऑफ प्लैनेट इज 1/7 ऑफ अर्थ मास, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमको वेट mg होता है पता है, और g इज gm बाई आर स्क्वायर, तो हमने सिर्फ दोनों का वेट का फॉर्मूला डाल के उसका रेशो ले लिया, हमको मिला वेट ऑफ प्लैनेट अपॉन वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, एंड देन वी हैव जस्ट डन रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस, वी हैव डिड जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड, ज्यादा कुछ नहीं था। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, टी स्क्वायर और आर क्यूब का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते तो स्लोप क्या आएगा।
तो यहाँ पे पता होना चाहिए इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन अराउंड अदर ऑब्जेक्ट, देन इन दैट केस सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों को इक्वेट कर लिया तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एच इंटू आर क्यूब मिला, मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एच इज द स्लोप, राइट। ये इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ जी का फॉर्मूला लिया है, स्मॉल जी का, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी दिखा है और डेंसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। एंड दीज टू क्वेश्चंस वी हैव जस्ट डन, फ्रेश हुआ है अब, तो नो नीड ऑफ रिवीजन, राइट। सो वी विल स्टॉप हियर एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सीखा वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है ये देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये भी देखेंगे हम लोग।